So yesterday I was doing this problem, how to find linear transformation from the matrix. So we have done one problem when standard basis given to you. Both the bases are standard basis. So one more problem I was doing. Let me take the problem. This was a problem. It was problem first B. When the bases are not standard, so one matrix will be given to you. So I took this 1, 1, 2, 3, 1, 0, 1, minus 1, 1, 2, 0, 0. This matrix given to you, 3 rows, 4 columns, 3 cross 4, and 2 bases given to you, non-standard bases. 1, 1, 1, 1, 2. 4 टपल्स हैं इसमें ना, 4 टपल्स गिवन है. 1, minus 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, and 0, 1, 0, 0. क्योंकि मैप जो बनेगा V4 से V3 बनेगा, तो V4 आपका ये डोमेन होगा एंड V2 इट्स ए कोडोमेन. 1, 2, 3, 1, minus 1, 1, and 2, 1, 1. So it was given. So I want to find the transformation. We know there will be definitely a transformation. Linear transformation will exist there. T from V4 to V3. यहाँ से हम देख सकते हैं V4 से V3 ये ट्रांसफॉर्मेशन एक्सिस्ट करेगी. तो मैंने इसको U1 U2 कंसीडर कर लिया था फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस. आई एम टेकिंग सपोज इट इज U1 U2 U3 U4. दिस इज सपोज आपका V1 V2 V3. So you have to write a coordinate vector of. So this represent a coordinate vector. So here I can write the images of this. I want to find T. So T of U1 will be what? T of U1 means T1, 1, 2. Hai? So this first column will be a coordinate vector. This I can write V1 plus V2 plus V3. है ना? So it was coming. जब आप ऐड करेंगे इसे तो 1 plus 1 plus 1 4 2 5. It was coming this. Similarly, you can write T of U2. Tu2 will become, you will take the second column, so 1 into V1 plus 0 into V2 plus 2 into V3. So it was coming 5 4 5. Similarly, Tu3. So now you take the third column, multiply in the B2. So 2V1 plus V2 plus 0 V3. So it will be coming 3 3 7. 3 3 7. And the last Tu4 will be 3V1 minus V2 plus 0 V3. It will be 2 7 8. ओके, यहाँ तक हमने शायद कर लिया था. अब मुझे क्या है, आई वांट टू फाइंड अ लीनियर मैप. आई वांट टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पे? आई वांट टू फाइंड व्हाट इज Tx1 x2 x3 x4. ये मैप क्या होगा, ये हमें निकालना है ना, क्योंकि यहाँ डोमेन में 4 एलिमेंट्स होंगे, 4 टपल्स. पहले आई विल फाइंड द जनरल फॉर्मूला फॉर दिस एंड देन आई विल ऑपरेट T, so it will give you the map. तो जनरल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? Any x1 x2 x3 x4 belongs to V4 Alpha and 1 U1 alpha 2 can be written as a linear combination because B1 is the basis, so it will span. So I know any x1 x2 x3 x4 can be written as a linear combination of alpha U1 plus beta U2 plus gamma U3 प्लस डेल्टा U4. ये स्केलर है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा 1 अल्फा 2 ले लो, आप कुछ भी ले सकते हो.
So I will find what is this alpha, beta, gamma, delta in terms of x1, x2. इसको आप सॉल्व कर लेंगे, u1 u2 की वैल्यू रखेंगे, you will solve it. So after solving, it will be coming alpha plus beta. आप सॉल्व करेंगे u1 की वैल्यू पुट करके. Second will be coming alpha minus beta plus delta. Third vector will be alpha plus gamma and fourth will be 2 alpha plus gamma. ये आ जाएंगे. Now equating and solving. इसे इक्वेट करके हम सॉल्व करेंगे अब. तो जब सॉल्व करोगे तो आई हैव सॉल्व इट, आप चेक कर सकते हैं इसे कैलकुलेशन में. सो इट विल बी कमिंग, डायरेक्ट वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ, लिख दे रहे हैं आफ्टर. सो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट अल्फा बीटा की वैल्यू एक्स वाई के टर्म्स में लाने, x1 x2 के टर्म्स में लेंगे. तो अल्फा विल बी कमिंग x4 minus x, बीटा विल बी 2x1. कितना आ रहा है बीटा सॉल्व हो गया? बीटा इसका में x1 plus x3 minus x4. and gamma will be how much? 2x3 minus x4. 2x3 minus x4. And delta x2 plus x1 minus 3x4 plus 2x3 minus 2x. ये आ जाएगा, है ना? चेक कर सकते हो, ये आ जाएगा. बस इसे उठा. नाउ आई विल फाइंड पुटिंग द वैल्यू बैक एंड ऑपरेटिंग t. तो here then the next level. So hence सर minus 3x4 आ जाएगा लास्ट में. है क्या आएगा यहाँ? -4 -3 नहीं, x1 plus x2 plus 2x3 minus 3x4 3x4. 3 है यार. यस सर. 2 लिखा हुआ है यार इसमें तो यार. चलो आप चेक कर लेना. 2 है, 3 है, 2 है, चेक कर लेना एक बार. डेल्टा कितना हुआ? अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू दिस. तो डेल्टा की वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ से कितनी आएगी, यहाँ से अगर हम चेक करें, डेल्टा विल बी व्हाट? x3 माइनस अल्फा प्लस बीटा. तो डेल्टा विल बी x3 माइनस अल्फा. तो x3 माइनस 2x3 आएगा, ठीक है. और x4 कितने आएंगे? x4 प्लस 2x4 आएगा भाई, 3x4 नहीं आएगा कहीं भी. x4 2 ही है ना, 2 ही आएगा यहाँ. 2 है, ये चेक कर सकते हो यहाँ से. देखो सेकंड वेक्टर में आया ना डेल्टा, इसे चेक कर लो. तो 2x4 आएगा, चेक कर लीजिएगा. सो यू गॉट दिस इज इक्वल टू, इसे उठा के यहाँ पर रख दीजिए. तो अल्फा की प्लेस पे आ जाएगा x4 माइनस x3 एंड u1 प्लस x1 प्लस x3 माइनस x4 u2 प्लस 2x1 माइनस x4 u3 and plus x1 plus x2 plus 2x3 minus 2x4 u4. Now operating t on whole. तो जब आप t ऑपरेट करेंगे, है ना, तो इन द नेक्स्ट स्टेप ऑपरेटिंग t on both sides. तो लेफ्ट में तो आपका जो जनरल मैप यू वांट टू फाइंड, दैट विल बी कमिंग x1 x2 x3 x4 and here x4 minus x3 t of u1 t of u2 t of
u3 and x1 plus x2 plus 2x3 minus 2x4 tu4। इनकी वजह से आपको पता है tu1 tu2 ये तो हमें दे रखी है, ये हमने निकाल ली थी पहले ही। इनको वैल्यू को पुट कर दिए एंड अरेंजिंग द टर्म्स, सो फाइनली इट विल बी कमिंग आफ्टर सॉल्विंग। तो डायरेक्ट मैप आपका जो आएगा वो ये निकल कर आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। 7x1 plus 2x2 plus 11x3 minus 8x4, 11x1 plus 7x2 plus 22x3 minus 19x4 एंड ट्रिपलेट्स आएंगे इधर, है ना, क्योंकि मैप आपका v4 से v3 था, तो ट्रिपलेट्स होंगे बस। 13x1 plus 8x2 plus 30x3 minus 23x4, so it will be the map. So in this way you can find a map. So for every matrix there associated a linear map relative to the given ordered basis. I will change the basis, the matrix will be changing. Okay, तो इस पे कुछ प्रॉब्लम्स है या आपने आप कर लीजिएगा। सेकंड प्रॉब्लम सब सेम टाइप की प्रॉब्लम है। सेकंड प्रॉब्लम है सेट में मैट्रिक्स गिवन है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, the identity matrix 3 by 3। Here you have to find with respect to standard basis, इसका A पार्ट है और B पार्ट है, ये आप सॉल्व करेंगे। ऐसे ही थर्ड का B पार्ट सॉल्व कीजिएगा एंड फोर्थ का C पार्ट है। सब में मैट्रिक्स गिवन है 3 by 3 की, कहीं 2 by 3 है, कहीं 3 by 2 है, वो मैट्रिक्स सेम प्रोसीजर कर सकते हैं भाई। ऑल ऑफ यू कैन डू दीज प्रॉब्लम्स। यस सर। चलो एक एक प्रॉब्लम जरूर कर लीजिएगा अपने आप। कोई कॉपी बनाई है इस बार नहीं आप लोगों ने जिस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, या बस लेक्चर रिकॉर्ड ही हो रहे हैं खाली? सर बना रहे हैं। हाँ सर बना रहे हैं साथ के साथ। हाँ, तो उस पर सारी प्रॉब्लम्स करते रहे, वो मैं आपसे लास्ट में मांग लूंगा एकदम से। जो जो प्रॉब्लम्स में होम असाइन ये छोड़ता हूँ, इन्हें करते रहना है आपको फॉर योर प्रैक्टिस। So it was your 5.2. Next topic we have for 5.2 के बाद सीधा 5.5 है आपका in your syllabus. Rank and nullity of a matrix. Rank and nullity of a matrix. जैसा आपने देखा there is a for every map there is associated a matrix, तो it means कि we can also find a rank and nullity of a matrix, क्योंकि जब आप मैप के निकाल सकते हैं तो अगर हम उसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो व्हाट अबाउट द मैट्रिक्स। So before that I will find a relation in matrix and a linear transformation. How? Suppose I am taking A is any matrix alpha ij m cross n, I short में लिख रहा हूँ मैं ij। Suppose you have this and let us suppose two standard bases are given to you. B1 is standard basis E1 E2। अभी आपका मैं Vn से Vm होगा, तो यहाँ पर B1 जो है En लूंगा मैं, and B2 suppose I am taking F1 F2 Fm, these be the standard basis।
of Vn and Vn, है ना? क्योंकि I know कि for this A there will be associating a linear transformation Vn to Vm. तो Vn के लिए I have taken the basis E1, E2, En standard basis, and Vm के लिए I have taken this standard basis. F1, F2 representing the standard basis. Now, suppose X, I am representing X by a representing this X. Suppose this is an element belonging to Vn. Vn. Then, you know, X can be written as a linear combination of E1, E2, En, है ना? I can write X1, E1 इस वेक्टर को I can write as a linear combination of this. ये लिख सकता हूँ मैं क्योंकि स्टैंडर्ड बेसिस है तो ये 1 0 0 वही हो जाएगा एंड सो ऑन एक्स एन ई ऐसे लिख सकते हैं किसी भी एक्स को. नाउ लेट टी कोई मैप है आपका Vn to Vm, be the linear transformation associated with A. Associated with A. Then we can write T of Ej is equal to, अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एसोसिएटेड है तो इस मैट्रिक्स से कॉलम का यूज करके आई कैन राइट ऑल द E1 E2 इन टर्म्स ऑफ F1 F2, है ना? तो मैं जनरल Ej ले रहा हूँ, J is 1 to n. क्या लिख सकते हैं इसे हम? आई कैन राइट अल्फा 1j F1 प्लस अल्फा 2j F2 एंड सो ऑन अल्फा mj Fm. ऐसे लिख सकते हैं, है ना? जब आप E1 लेंगे, E1 कितना हो जाएगा? अल्फा 1 1 F1 2 1 F2. ये 1 1 2 1 क्या? दे आर द कॉलम. तो इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, यू हैव द बेसिस, यू कैन ऑलवेज राइट दिस. जैसे भी हमने पीछे मैट्रिक्स से ट्रांसफॉर्मेशन लिखी थी. तो इसको अगर आप बेसिकली देखेंगे, क्योंकि F1 F2 भी स्टैंडर्ड बेसिस हैं, तो ये चीज़ क्या आएगी सॉल्व होके? जो कोऑर्डिनेट वेक्टर है यही आ जाएंगे एज इट इज. स्टैंडर्ड बेसिस में यही तो होता है, अल्फा 1j अल्फा 2j एंड अल्फा mj. इज इट क्लियर? बताओ भाई. Yes, sir. जयदीप सिंह, है ना? क्योंकि ये स्टैंडर्ड बेसिस है तो ये जो कॉम्बिनेशन है इट इज नथिंग बट यू कैन राइट एज अ कोऑर्डिनेट आल्सो. नाउ because F1 F2 they are standard basis, so Tx, now Tx का मतलब क्या है? Tx1 x2 ये जो हमने लिखा था x was this. इसमें एक रिलेशन निकाल के लाना चाह रहा हूं मैं. देखो Tx में और Ax में, तो Tx1 x2 xn this can be written as this, and because T is linear transformation I can write x1 Te1 plus x2 Te2 and so on xn Ten. ओके. और अब Te1 क्या है? व्हाट इज Te1? अल्फा 1 1 F1 ये लिखा हुआ है ना. दिस आई कैन राइट इज इक्वल टू x1. इसको मैं अगर कॉलम में लिख दूं, T1 को मैं अगर कॉलम, क्योंकि कॉलम वेक्टर है बेसिकली, तो ये क्या आएगा? फर्स्ट T1 विल बी व्हाट? अल्फा 1 हाँ, और alpha 1 alpha 2 1 1 alpha 2 1 2 1 एंड alpha सो 3 ऑन अल्फा alpha m m1. ये आपका फर्स्ट कॉलम. जब आप इसकी इंटू करेंगे यही आएगी वैल्यू, है ना? प्लस x2 T2 E2 लेंगे तो यहाँ j की जगह 2 आ जाएगा बस. अल्फा 1 2 2 2 and so on alpha m2. In this way you can write and so on plus xn alpha 1n alpha 2n और लास्ट alpha mn, है ना? अब देखो, अब आ जाओ इसकी इंटू करेंगे तो हाउ यू विल एडिंग
x1 की मल्टीप्लाई होगी सारे उसमें x2 की एंड यू विल बी एडिंग. तो जब इसको आप यू विल बी एडिंग तो इट विल बिकम अ सिंगल मैट्रिक्स x1 alpha 1 1 plus x2 alpha 1 2 and so on x, है ना. ये पहले स्केलर लिख दो, एक ही बात है. x पहले स्केलर लिख लें अगर हम अल्फा 1 1 x1 ऐसे लिख लो. चलो नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूँ मैं. So it will be coming after solving, it will be coming a single matrix of n by 1 alpha 1 1 x1 plus alpha 1 2 x2 and so on alpha 1 and xn, and it will be your first row, then second row x2, and the last row will be alpha m1 x1 plus alpha m2 x2 and so on. देखिए आएगी नहीं भाई, ने ऐड कर लिया हमने, सिंपल हो पेज, सिंपल ऐड कर दिया बस इन्हें मल्टीप्लाई करके. आई हैव जस्ट एडेड, सो इट विल बी कमिंग दिस. नाउ देखो ये व्हाट इज दिस थिंग, इसको क्या कैन आई राइट इट, कैन आई राइट इट अल्फा 1 1 अल्फा 1 2 एंड सो ऑन अल्फा 1 n अल्फा 2 1 2 2 2 n and so on alpha Yes, sir. m1 alpha m2 and so on alpha Yes, mn. sir. ऐसे लिख सकते हैं क्या? और Yes, sir. यहाँ हर रो में से x1 कॉमन, x2 कॉमन. ऐसे मैं ये लिख Column. सकता हूँ, ये इक्विवेलेंट है. Yes, sir. क्योंकि जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट क्या होगा, यू विल मल्टीप्लाई द फर्स्ट रो विद द कॉलम, तो फर्स्ट ही रहेगी, है ना. और ये क्या थी आपकी, इट वाज योर ए, इट इज योर ए, है ना. ये तो लिया था हमने, ए वाज अल्फा 1 1 अल्फा 2, ये आपकी m क्रॉस n मैट्रिक्स थी. इट मींस व्हाट, that means what you got, hence you got tx is equal to ax. तो यहाँ पर you got a relation कि tx can be obtained. tx क्या है, tx is the linear transformation, है ना. So it means कि the matrix, the linear transformation tx can be obtained by multiplying the matrix A with x, है ना. इसका मतलब क्या हुआ कि t जो है it is treating like with this matrix A. t की जगह पे I can use as a this matrix. यहाँ पे मैप है, you can say here that the vector tx, this can be obtained by multiplying the matrix A by the column vector, by the, ये कॉलम में आ रहा है ना, ये कॉलम वेक्टर, क्योंकि ये आपके पास m क्रॉस n की थी, n क्रॉस m, और ये कितना है n क्रॉस 1, n क्रॉस m था, m क्रॉस n था, m क्रॉस n था, m क्रॉस n, है ना. तो ये आपका प्रोडक्ट m क्रॉस 1 का एक निकल के आएगा मैट्रिक्स, जो ये था m क्रॉस 1 का, बाय द कॉलम वेक्टर x इज इक्वल टू x1 x2 xn. इसके ऊपर मैं ट्रांसपोज लगा दे रहा हूँ, ये कॉलम है, ये है ना, लिखा ऐसे लेकिन t का मतलब हो गया इट इज अ कॉलम. तो t इज कैन बी ऑब्टेन्ड बाय दिस a. तो इट मींस व्हाट के इंस्टेड ऑफ टॉकिंग of this linear transformation t associated with a, we can talk about a itself, क्योंकि t is nothing, t is representing by a. तो जो चीज आप t के लिए फाइंड कर रहे थे वो हम a के लिए फाइंड कर लें, तो इट्स अ सेम थिंग हियर, है ना. तो t की जगह आई कैन टॉक अबाउट a और नाउ, जैसे आपने रैंक ऑफ t था, तो रैंक ऑफ t आई कैन टेक रैंक ऑफ a.
Yeah, range of T can be talking as the range of A because they have a relation कि Tx can be represented by Ax. X तो आपका वही है, तो it means what? This matrix A जिसके जो मैट्रिक्स है जिसको हमने यूज किया है ना, this will be treating as a T now. So all the definitions I can write now for A. That means what? There is a definition of 5.5.1. The range kernel rank and nullity of a matrix A are defined as the range rank kernel and nullity of the linear transformation A. So जो मैट्रिक्स A था, that can be say that range kernel rank nullity of linear transformation A, क्योंकि जो मैट्रिक्स है ना, that is nothing but now it's a linear transformation. T और A में ये रिलेशन निकल के आ गई, ठीक है। तो अगर मुझे रेंज ऑफ ए निकालना है तो आई कैन से आई विल फाइंड द T के प्लेस पे आई कैन फाइंड A. So range of A, suppose you want to find now range of A, what is the range of this matrix A? So I can say the range of A, अब T की जगह मैं A यूज कर रहा हूं तो A will be Vn to Vm now, है ना, यही तो मैप था Vn to Vm, तो T के प्लेस पे आई कैन फाइंड दिस A. दिस इज द रेंज ऑफ A, क्या होगा, set of all vectors of the form. भाई रेंज ऑफ ए क्या होता है, Tx, रेंज क्या होती है, Tx टाइप का तो होता है, Tx बिलोंग्स टू Vm, तो AX हो जाएगा। यहाँ पर Ax हो जाएगा बस, Ax बिलोंग्स टू Vm, ये रेंज सेट होगा। रेंज सेट क्या होता है आपका, अगर कोई टी मैप है, रेंज सेट होता है Tx, यहाँ पर अब Ax हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पर रिलेशन निकाल दी Tx इक्वल टू Ax, ठीक है। तो ये अगर मुझे रेंज ऑफ ए निकालना है तो आई विल हैव टू फाइंड व्हाट अबाउट दिस Ax, वेयर X इज कमिंग फ्रॉम Vn, है ना, X बिलोंग्स टू Vn, X तो डोमेन का एलिमेंट होता है। सो नाउ व्हाट इज Ax, Ax अभी हमने निकाला था पीछे, व्हाट इज Ax, ये था Ax आपका, या ये कह लो, ये तो था Ax, ये जो हमने निकाला है अभी, दिस इज योर Ax. यस सर। So Ax is nothing but, so which is yeah, Ax जो आपका आया था, it was alpha 1 1 x1, ये तो लिखा था अभी, alpha 1 2 x2 and so on, alpha 1 n xn 2 1 x1 2 2 x2 and so on, 2 n xn and so on, alpha m1 x1 m2 x2 and so on, mn xn, या ये क्या था, ये बेसिकली ये था आपके पास, इससे पीछे अगर इसको पीछे जाएंगे तो ये वाला स्टेप था, कहाँ था ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट x1 टाइम कॉलम ऑफ alpha 1 1 alpha 1 1 alpha 2 1 and so on, alpha m1 प्लस x2। तो इसको ये फर्स्ट स्टेप की टर्म में छोड़ सकते हैं। हाँ, इसे हम इस तरीके से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आई विल शो, एक्चुअली आई वांट टू शो दैट द रेंज स्पेस, दिस इज द रेंज स्पेस Ax, है ना, इट इज स्पैन्ड बाय द कॉलम वेक्टर्स। देखो
ये आप क्या लिख रहे हैं, एंड सो ऑन, जो लास्ट लिखेंगे वेक्टर xn, तो इट विल बी व्हाट, द लास्ट वेक्टर xn अल्फा 1n 2n एंड सो ऑन अल्फा mn, ये लिख सकते हैं ना इसे लास्ट। इसको आई कैन राइट इन दिस वे, मल्टीप्लाई करोगे यही तो आ जाएगा, अल्फा x1 अल्फा 1 प्लस x1 अल्फा 2, इसी तरह से मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो x की मल्टीप्लाई होगी फिर आप ऐड करेंगे तो पहला वेक्टर आ जाएगा, देखो अल्फा 1 1 x1 प्लस अल्फा 1 2 x2, इट मींस व्हाट कि योर, linear Yes, sir. combination. हाँ which are linear combination of the column vectors of A। देखो ax क्या था आपका, रेंज सेट था, रेंज स्पेस, तो रेंज सेट जो था वो क्या आया, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम वेक्टर्स, ये कॉलम वेक्टर्स हैं और x1 x2 आपके वेक्टर हैं, तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो होता है, x1 into something plus x2, so it is nothing but it is the linear combination of the column vectors of A, so it means what, thus the range of m cross n matrix is the span of its column vectors, ये कह सकते हैं हम, है ना, what is the range, span